गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आप एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं 9th क्लास लास्ट एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, क्वेश्चन आलमोस्ट सेम ही है, थोड़ा कन्फ्यूजिंग लगता है देखने दे विच, बट कन्फ्यूजिंग नहीं है। जिस तरह x ते y का रिलेशन होंदा है ते आपां कहने भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, सेम ये भी टू वेरिएबल्स विच लीनियर इक्वेशन ही है f एंड c विच। हियर f जो है रिप्रेजेंट कर रहा है फारेनहीट जो टेंपरेचर का मेजरमेंट है, c जो डिनोट कर रहा है वो सेल्सियस में कर रहा है। क्वेश्चन की है इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कैनेडा टेंपरेचर इज मेजर्ड इन फारेनहीट। कहंदा भी यूएसए ते कैनेडा वर्गे कंट्रीज विच जो टेंपरेचर है वो फारेनहीट में मेजर किया जाता है, ते इंडिया वर्गियां जिहड़ियां कंट्रीज है उन्हां दे विच जो टेंपरेचर मेजर किया जाता है वो सेल्सियस विच। कहंदे एक लीनियर इक्वेशन है ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਫਾਰਨਹੀਟ ਨੂੰ ਸੈਲਸੀਅਸ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਫਾਰਨਹੀਟ ਦਾ ਜੋ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਉਹ ਸੈਲਸੀਅਸ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਇਹ ਜੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜੋ f ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ x ਨੂੰ ਤੇ ਜੋ c ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ y ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, c ਦੀ ਜੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਉਹ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ, ठीक है। तो कॉरस्पॉन्डिंगली जो f है ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਉਹ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜੋ c ਹੈ ਮੀਨਸ y ਹੈ ਔਰ x ਔਰ ਐਨੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ 1 2 3 ਔਰ -1 -2 -3 ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ठीक है, बट ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ c ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ 9/5। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ c ਦੀ ਇਹੋ ਜੀ ਵੈਲਿਊ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆਵੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਉਹ ਸਮਾਲੈਸਟ ਆਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਛੋਟਾ ਹੋ ਸਕੇ ਉਨਾ ਛੋਟਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਦੂਸਰਾ ਇਸ 5 ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਈਜ਼ੀਲੀ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ c ਹੈ ਇਹਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਈਏ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੂਸਰੀਆਂ ਲਈਏ 5 ਦੇ ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਲੈਟ ਅਸੀਂ c ਦੀ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ -5। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ, ਅਸੀਂ c ਦੀ ਇੱਕ ਫਸਟ ਵੈਲਿਊ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ -5। ਤਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣੇਗੀ, f 9/5। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ -5 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਲੱਸ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਬੇਟਾ 32 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਕੈਨਸਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 5 1 5 ਐਂਡ 5 1 5। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ -9 ਪਲੱਸ 32 ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ 12। ਓਕੇ, ਤਾਂ 5 ਤੇ 5 ਦੋਨੋਂ ਕੈਨਸਲ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਏਗਾ ਜੀ -1 ਕੈਨਸਲ ਹੋ ਕੇ 9 1 9 -9 ਪਲੱਸ 32 ਦੋਨੋਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 23 ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ c ਦੀ ਹੋਰ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੈਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜੋ ਆਨਸਰ ਆ ਉਹ 23 ਤੋਂ ਕੀ ਆਵੇ, ਲੈਸ ਦੈਨ ਆਵੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ c ਦੀ ਵੈਲਿਊ 5 ਦੇ ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਵਾਂਗੇ, -10 ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ -15 ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ठीक है, तो मैं कोशिश करता है कि -15 ही लेंगे, देखते हैं भी की होता है -15 लेके। चलो जी f इज इक्वल टू 9/5। देखो इतने सी माइनस लेगा 15 ते प्लस आ गया साडे कोल 32। नाउ 5 1 5 और 5 3 15। लो बेटा 9 3 -27 प्लस 32। जेकर ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ बेटा ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ 5। क्लियर। ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਟੀਨਿਊ ਲਿਖ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਟੇਬਲ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੇਟਾ ਫਾਰਨਹੀਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ ਸੈਲਸੀਅਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੈਲਸੀਅਸ -5 ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਜੋ ਆਨਸਰ ਆਇਆ ਉਹ ਆਇਆ 23 ਫਾਰਨਹੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ -15 ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਜੋ ਆਨਸਰ ਆਇਆ ਫਾਰਨਹੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਇਆ ਹੈਗਾ 5। ਆਪਾਂ ਇਸ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗ੍ਰਾਫ ਇਸ ਦਾ ਕਿਸ ਫਾਰਮ 'ਚ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਡਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਾਰਨਹੀਟ ਤੇ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦੀਆਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਲਏ ਆ ਬੇਟਾ। ਜੋ x ਐਕਸਿਸ ਹੈ ਇਹ ਡਿਨੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਫਾਰਨਹੀਟ ਨੂੰ ਤੇ ਜੋ ਸੈਲਸੀਅਸ ਹੈ ਇਹ ਡਿਨੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ y ਐਕਸਿਸ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਾਰਨਹੀਟ x ਐਕਸਿਸ ਨੂੰ ਡਿਨੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜੋ ਸੈਲਸੀਅਸ ਆ ਉਹ y ਐਕਸਿਸ ਨੂੰ ਡਿਨੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। मैं एक ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਟਰਨ ਦੱਸਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੈਲਸੀਅਸ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ x ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜੋ ਫਾਰਨਹੀਟ ਆ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ y ਐਕਸਿਸ ਤੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਬੁੱਕ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਿਹਾ
जो सैलसीयस है वो डिनोट करे एक्स एक्सिस ਨੂੰ, जो ਫਾਰਨਹੀਟ है वो डिनोट करे वाई एक्सिस ਨੂੰ। सो मैं ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਾਇਆ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਜੋ ਫਾਰਨਹੀਟ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਮੈਂ 5 ਦੇ ਗੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਆਇੰਟਸ ਲੈਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉੱਪਰ ਵੀ ਤੇ ਨੀਚੇ ਵੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਆਲ ਨੋ ਵੀ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੰਬਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉੱਪਰ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਨੀਚੇ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, नेगेटिव नंबर्स होंगे हैं, ठीक है। सो जो फर्स्ट पॉइंट है बेटा वो 23 से -5 है। आ जो कोऑर्डिनेट है 23 से -5 कितने आएगा, मैं 20 के पॉइंट्स ले ले, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 2 3 4 इट इज 25। सो 23 जो है वो साडे कोले -5 के ऊपर होना चाहिए। सो ये कोऑर्डिनेट जो है 23 से -5 है। दूसरा जो कोऑर्डिनेट हैगा बेटा वो हैगा -5 एंड -15। मैं दोनों में एक लाइन ड्रॉ की है। जो आ वाला जो ग्राफ है ना बेटा, ये साडे इसे इक्वेशन ਨੂੰ जो लीनियर इक्वेशन है इसनु डिनोट कर रहे हैं डिग्री सेल्सियस। वो कहते इफ द टेंपरेचर इज 30 डिग्री, मीन जो C है वो 30 डिग्री होवे तो फारेनहीट ਵਿੱਚ कितना आंसर आएगा, ठीक है। आप हम करते हैं F = 9/5 ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ 30 डिग्री, ठीक है। प्लस कितना आएगा 32। ਹੁਣ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਜੋ ਫਾਰਨਹੀਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ। ਸੋ 5 1 5 5 6 30। ਸੋ F = 9 6 54 डिग्री plus 32। The right answer is 86 डिग्री, ठीक है। सो ਫਾਰਨਹੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, 86 डिग्री होना चाहिए। हाँ जी, ਆਪਾਂ ਦਾ ਥਰਡ ਪਾर्ट ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ, ठीक है। सेकंड पार्ट हो गया अपना। थर्ड पार्ट में बेटा हमने पूछा है इफ द टेंपरेचर इज 95 डिग्री फारेनहीट व्हाट इज द टेंपरेचर इन सेल्सियस। हुन सानू बेटा जो फारेनहीट है वो गिवन है, देखो अपने को F = 9/5 C + 32 B, ठीक है। इस बार जो हम टेंपरेचर गिवन है वो F गिवन है, ਅਸੀਂ F फाइंड C जो है फाइंड करना चाहते हैं। तो मैं ਕੀ ਕੀਤਾ, इस F ਨੂੰ राइट हैंड साइड ਤੇ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ, ठीक है। ਅਸੀਂ ਇਹ फाइंड करना चाहते हैं। तो अपना को क्या है 9/5C + 32 = F। F ਸਾਨੂੰ गिवन हैगा इट इज 95 डिग्री। सो मैं इसे बेटा 95 डिग्री लिखने लग गया जिस लिए, ठीक हो गया। मैं 9/5C ਨੂੰ सेम लिख देना है। जो कांस्टेंट है 32 इस ਨੂੰ मैं की करना राइट हैंड साइड ਤੇ शिफ्ट कर देना है जिस लिए ਜਦੋਂ राइट हैंड साइड ਤੇ ट्रांसफर होएगा तो आप इसका साइन जो है वो चेंज कर देंगे। सो चेंज करते हैं 5 - 2 3 एंड 9 - 3 इट इज 63। बेटा इट इज कॉल्ड द कोएफिशिएंट ऑफ C। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 5/9 ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਕੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਦਿਸ ਵੇ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਨੂੰ। ਸੋ 9 1 are 9 and 9 7 are 63 7 5 are कितना आ गया बेटा 35 डिग्री आएगा। सो इन सेल्सियस जो है वो है जी 35 डिग्री, ठीक है। ये अपनी थर्ड ऑप्शन सी जो आप हुणे कीती हैगी है। हुण आपां करांगे इसे क्वेश्चन दी फोर्थ ऑप्शन। हाँ जी स्टूडेंट्स, बेटा जो फोर्थ पार्ट है वो बिल्कुल सेम है, मैं तुहानू दिता तुसीं अपने आप करना। कहते इफ द टेंपरेचर इज 0 डिग्री फारेनहीट, ठीक है, एंड 0 डिग्री सेल्सियस, तो एक बार असं की करेंगे सेल C ਨੂੰ 0 पुट कर देंगे तो अपना आंसर क्या आ जाएगा F = 32। एंड इसी तरह सेकंड पार्ट करेंगे, एक बार ਅਸੀਂ F ਨੂੰ 0 पुट करेंगे। सो ये तुसीं अपने आप सॉल्व करना है। मैं इसी क्वेश्चन का लास्ट वाला जो पार्ट है वो गल करने जा रहे हैं। बेटा कहते हैं न्यूमेरिकली फारेनहीट एंड सेल्सियस किहड़े पॉइंट ते आके इक्वल होंगे। आप आ वाला क्वेश्चन करना सी। देखो जेकर आप इस ग्राफ को नोट करिए ध्यान नाल देखो बेटा, इहो जिहा किहड़ा पॉइंट है जिथे जो फारेनहीट ते सेल्सियस जिहड़े हैगे दोनों की हो जाण सेम हो जाण। थोड़ा मैनूं ग्राफ को एक्सटेंड कर लें गल समझण दे लई, फिर आपां टॉपिक ते गल करदे हां।
हाँ जी बेटा जे इस ਨੂੰ देखिए देखो ध्यान ਨਾਲ देखो जे मैं फार सेल्सियस की वैल्यू को मैं डिक्रीज कर रहे हैं कंटिन्यू तो की हो रहा है फारेनहीट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है मान लो आप इधर देखिए इधर जाके मेरे को जो वैल्यू है वो तो एक तो है -5 बट ये कितना हो गया 15 हो गया सो जेकर मैं फर्स्ट और लास्ट क्वाड्रेंट की गल करा तो पॉसिबल नहीं नजर आਉਂਦਾ जिथे फारेनहीट ते सेल्सियस दोनों की वैल्यू की होवे सेम होवे नॉट पॉसिबल क्योंकि जिवें जिवें इसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है फारेनहीट की वैल्यू की हो रही है इनक्रीज हो रही है सो आप इस साइड देखते हैं कि पॉसिबिलिटी है तो थोड़ा जिहा नजर आ रहा है देखो किवें जिवें जिवें साडे कोले सी की वैल्यू चेंज हो रही है इनक्रीज हो रही है वैसे तो डिक्रीज हो रही है क्योंकि नीचे जितना ज़्यादा डिक्रीज हो रही है बट आप कभी न्यूमेरिकल वैल्यू लेके चल रहे हैं एक बार माइनस या प्लस वाल ध्यान नहीं देते तो 20 25 30 35 40 एवं जा रहे हैं तो ये भी इधर की हो रही है इनक्रीज हो रही है जेकर आप देखिए तो कितने ना कितने लगता है भी जो अपना आंसर है वो 35 -40 45 इतना ही आंसर अपना जो है वो हो सकता है तो आप वाली जो वैल्यूज है एक हिडन ट्रायल मेथड आप करते हैं कोई वैल्यू जी वो पुट करके देखते हैं कि की आंसर जो है वो पॉसिबल हो सकता है आप आंसर जो है वो लवांगे माइनस सॉरी जो वैल्यू पुट करते हैं वो लवांगे आप माइनस आंसर भी अपना कद जाएगा माइनस ही आएगा आप थोड़ी जी हायर वैल्यू लेके चलेंगे अपने को क्वेश्चन से बेटा f = 9/5 c + 32 तो मैं एक हिट एंड ट्रायल मेथड ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ 9/5 ਤੇ -32 लेके चलते हैं देखते हैं भी की आंसर आएगा ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ 5 ਆਂਸਰ 5 5 7 ਆਂਸਰ 35 9 7 आंसर -63 एंड +32 एक वैल्यू माइनस दी है एक जो है वो प्लस दी है तो आप सॉल्व करिए 3 - 2 1 आ गया 6 - 3 3 आ गया तो -31 आया देखो मैं 35 पुट कराया 31 उसको क्लोज वैल्यूज आई हैं ठीक है हुण आपां की करते हैं बेटा आपां एक होर थोड़ी जी क्लोज वैल्यू लेके चलते हैं f = 9/5 एंड -40 देखते हैं भी हुण आंसर आंदा कि नहीं आंदा चलो जी 5 आंसर 5 5 8 40 ठीक है ये भी माइनस ही होएगा सो अपने को कितना आया बेटा 9 8 -72 एंड +32 देखो माइनस करिए 2 - 2 0 7 - 3 4 because 72 is higher than 32 so right here negative sign ओके सो बेटा ਜਦੋਂ मैं -40 पुट ਕੀਤੀ c ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਵੀ ਕੀ ਆਇਆ -40 ਆਇਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਹ ਆਨਸਰ ਸੇਮ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਯੈਸ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਯੈਸ ਵੇਅਰ f and c are same तो वैल्यू की है बेटा f जे ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ -40 डिग्री ਹੋਵੇ ਤਾਂ c ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ -40 डिग्री ही आਉਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈਗਾ सेम है राइट आंसर हैगा ठीक है so f and c फारेनहीट एंड सेल्सियस आर सेम एट -40 - 40 डिग्री ठीक है सो ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਗੇ ਬੇਟਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ ਕਰੋ